ٹھیک ہو بس ٹھیک ہو بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جب دین کا کام شروع کیا جائے اللہ کی توفیق سے جو بندہ جس جگہ پر اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے نا تو اللہ اپنی رحمت سے اپنی شان اپنے فضل کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور یہ ایک بنیادی چیز نا یہ ذہن میں بٹھا لیجیے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے زیادہ ہے. یہ بات ذرا سمجھ لے گا. اپنا والا 10 نہ سمجھیے گا, اللہ کا 10 سمجھیے گا. اور اللہ کا 10 دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائے, کمپیوٹر خراب ہو جائے, وہ اللہ کے 10 کی گنتی نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. اس لیے جو بندہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے, جو کوشش کر رہا ہے, جو جس درجے میں بھی وہ کر رہا ہے, معاملت کر رہا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب کرے. میں پچھلی دفعہ بات ہو چکی ہے, تینوں باتوں پہ ہم نے 3 چیزوں کو لینا ہے. سب سے پہلے کہ مسلمان کو جو بنیادی چیزیں ہیں جس کے ساتھ سب سے بنیادی تعلق, اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ پلے گروپ میں ہوا ہے, یہ کے جی میں, یہ پریپ میں, پھر 1 میں, پھر پرانے زمانے میں پہلی کچی پکی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ گریڈ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سب سے آج کی زبان میں جو پلے گروپ ہے نا, جس میں بچہ جاتا ہے صرف کھیل کود کے آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ وہ اسباب ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق دے, اس سے آگے انشاءاللہ وہ جو مناظر ہوگی بتائے گا. تو 3 بنیاد میں پہلی بات ہے قرآن کے آنے کی تھی بات. تو یہ سوالات کی شکل میں دیکھا کہ سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ ایک بات سیکھنے کو یہ کہ ہماری صرف مسلمانوں کی نہیں, انسان اور جن, کیونکہ قرآن میں 2 مخلوقات جن سے سوال جواب ہونا ہے, 2 مخلوقات کا ذکر ہوا ہے. شاید اس سے علاوہ بھی اور کیا کیا مخلوقات ہمیں مل رہی ہیں جو ہمیں بتایا ہے, اس کے مطابق اگر بات کریں انسانوں اور جنوں کی, جتنے بھی ہیں, جو مسلمان ہیں وہ بھی, جو مسلمان نہیں وہ سب کی اگر ایک مشترکہ زبان ہے تو ہماری زبان کون سی ہے؟ عربی. اس کے بعد اردو, پنجابی, سرائکی, انگلش, جتنی بھی زبانیں نیچے لگا لیں وہ, لیکن ہم سب کی مشترکہ زبان عربی. پہلی بات. دوسرا ہمیں کہا ہے کہ عربی کی جس زبان سے ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اس کے حروف کتنے ہیں؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے, بڑا مجھے بتا دیں, خوشی ہوگی. غلط بھی ہو جائے گا تو یہ سوال جو ہمیں جتنا بندہ سیکھتا ہے نا اتنا صرف سنتے رہنا اور ٹھیک ہے بندہ چلا جائے, وہ اتنی چیز بندے کے ذہن میں وہ پختہ نہیں ہوتی. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, کوئی بھائی بتا دے کہ عربی کے کتنے حروف ہیں؟ 30, 29, کوئی 28 والا بھی ہے, 26, 27, 31, 26, ہاں جی 26, 28, 26, 29, 30, اور کوئی بات 27 بھی ہوگا, چلو فلنگ دی بلینک اسکور کر کے اچھی بات ہے. 26, 27, 28, 29, 30 والا کوئی بھائی؟ ہمارے عربی کے حروف 29 ہیں, 26 انگلش کے ہیں, ٹھیک ہے, 37 اردو کے ہیں, اور 29 حروف جو ہیں فارسی. پہلی ہماری زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. اس کے حروف کتنے ہیں؟ 29. تیسری بات, لفظ لکھنے میں مشکل آتا ہے, پتہ اللہ کہتا ہے کتنا اوکھا سوال کا ہے. عربی کی حرکات کو سمجھنے ہیں, کسی نے بتایا ہے. ہاں جی بچہ, کون سی؟ ہاں, زبر زیر پیش کو ان کو بتانے کے لیے کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. ٹھیک ہے, زبر زیر پیش 3 حرکات, اور چوتھی چیز ہے جس پر کوئی چیز نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن یا چل. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ وہ کون سی مشترکہ غلطی ہے جو 29 کے 29 حروف میں ہم سب بھی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں الا ماشاءاللہ, علماء کرام کو ہم سائڈ پہ رہنے دیں, ہم تو ناچیز ہیں, ہمارے ایمان بھی کمزور ہے, علم بھی کمزور ہے, کہ ہم پبلک میں جو ہم کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم دکان کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, وصولی کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ وہ کون سی غلطی ہے جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی کہ ہم سب ہی کر رہے ہیں قرآن میں؟ بھائی کو یاد ہو کسی کو؟ زیر کی. زبر زیر پیش میں سے ہماری جو مشترکہ سارے حروف میں جو غلطی ہے وہ ہے زیر. اور زیر کے کوئی مثالیں پچھلی 2 رات کے بعد کو آگے کرتا ہوں. ہم نے کہا سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اس میں کیا ہم نے اپنی اصلاح کی تھی؟ اہدنا الصراط میں
इधर सिरात मुस्तकीम क्या इधर सिरात मुस्तकीम इहदिना सिरात आराम से इसको जोर भी नहीं लगाना जटल ऐसा इहदीना इहदीना सिरात ई हम पढ़ते हैं ए हमजा जेर ए पढ़ते हैं ये हमजा जेर ई है ये हमने गलती अपनी बोली थी उसकी मिसाल में दी इहदीना हम इहदीना पढ़ते हैं दूसरी ये दूसरा जो लफ्ज है ये भी कुरान में पता नहीं सैकड़ों दफा आया होगा सिर्फ मिसाल के बता रहे ये लफ्ज पढ़ने में आपको क्या लगता है कैसे पढ़ते हैं जबर जेर नहीं दिखा हुआ इसलिए भाई लोग ये इलाइका ई तो हो गया फिर वो साथ अलग भी शामिल हो गए इलाइका और भाई कोई बात नहीं जबान से गलत नहीं इसी से हमें सीखना है ई इलाइका है ई इलाइका है एक तो हम गलती मानी है इलाइका पढ़ते हैं हम आम तौर पर जो भाई पढ़ रहे हैं सारे जरा वो इलाइका पढ़ रहे हैं इलाइका ये हमजा जेर ई है ई इलाइका है ई इलाइका भी नहीं है इलाइका है ठीक है ये हमने ई की गलती ढूंढ ली आज का जो सबक उसकी मसाले में बात इंशाल्लाह बताते हैं ये जो लिखा है आगे ये बेजबर बा बेजर बी बेबश बू ऐसे पढ़ते हैं क्यों ये तो बे लिखा हुआ ही ना बा तो बा के साथ अलिफ हो तो फिर बा बनेगा ये बे नहीं है जैसे अलिफ बे बे दे ये अलिफ बे दे सही नहीं है पक्की बात ये लिखने में ऐसे नजर आ रहा है उर्दू वाली बे नजर आ रही है जैसे उर्दू में बे लिखते हैं ऐसे बे ये लेकिन पढ़ने में अरबी में ये बे ये बा है ये बा जबर बा बाजर बी बाबिश बू बा बी बू निकल बा बी बू आराम से बा बी बू बा जबर बा बाजर बी बाबिश बू अब वो कौन सी गलती है जो सूरत फातिहा में बाजर बी का हवाले से कर रहे हैं ये हम अभी नमाज पढ़ी ये कैसे पढ़ते हैं अगर लफ्ज साफ नहीं तरह लिखा है पढ़ा जा रहा है गैर मगदूब में नहीं गैर मगदूब में कैसे पढ़े जैसे गैर सामने हमने अल्लाह की तौफीक से नमाज पढ़ी है तो कैसे पढ़ा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम गैर मगदूब में नहीं मतलब तो ये बी है गैर मगदूब बी बी हम बे पढ़ते गैर मगदूबी जब तू चले ये गलत है वैसे चल मगदूबी जाते गैर मगदूबी हम पढ़ते गैर मगदूब बे ये गलती कर रहे हैं सूरह फातिहा में नमाज में गैर मगदूब बे पढ़ ये गैर मगदूब बी दूसरी ये लफ्ज भी आम मारूफ है हम बार-बार कुरान में पढ़ते हैं अल्लाह ने ये है रब्बेका हम आमतौर पढ़ते हैं रब्बेका ठीक है ना रब्बेका रब्बीका वो मुशद्दद भी है इसलिए बोला हुआ है रब्बीका हम पढ़ते हैं रब्बेका ये बी की गलती जिस तरह हमजा जेर ई की गलती हो रही है ए पढ़ रहे हैं बाजर बी को बे पढ़ रहे हैं ये हमारी गलती पता चली इसकी हमने इस्लाह करनी है और जब भी कुरान पढ़ना जब भी है उसकी क्योंकि हमारी उम्र भी हो गई है ज्यादा चले बच्चे तो आएंगे तो जल्दी सीख लेंगे हमारी ज़बान पर एक चीज चढ़ चुकी है उसको वापस लाने के लिए थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है इंशाल्लाह ठीक है अगली बात हमने पहली दफा वजू का तरीका सीखा था ना वजू का ये वजू नहीं है वजू ही पढ़ते हैं वजू आ गया हैं वजू तो कहते ही नहीं है सारे वजू कहते हैं वजू आ गया ये हमारी गलती बोलने में क्या है वजू कहते हैं ये वजू है ठीक है और अब ये वजू का जो तरीका है अगर मुझे खुशी होगी तो बड़ों में बता दें गलती हो जाएगी कोई इसमें बात नहीं है अक्सर बात मैं इसको मजाकन समझ लेकिन बात है सीरियस मैं अक्सर बात ये करता रहता हूँ कि भाई लोगों के सामने शर्मिंदगी को आप शर्मिंदगी समझ रहे हैं अगर रब के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए तो उसका हमारे पास क्या काम हो इसलिए शर्मिंदगी झिझक ये शैतान छाड़ यार क्या एडा बड़ा हो गया नहीं वजू के तरीके क्या करें ये झिझक निकाल जो झिझक छोड़ देगा इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह तौफीक देता वो जल्दी सीखने लगे कोई बड़ों में से कोई आज हिम्मत करे इधर आके कोई वजू का तरीका बता दे तो कर सकता है या बच्चों की मदद जरूर है चलो बच्चों को पिला दे चलो आप आइए उस
आप टीचर हो इसको पुत्र, आप बता रहे हैं मत कोई मसला नहीं। गरारा भी करना किस हाथ से नाक साफ करना है बाहर, हाँ इससे। और अगर उंगली मारने की जरूरत पड़े कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है? हाँ ठीक है। और थोड़ा सा पानी साफ सकते ये इस हड्डी तक चढ़ाने की कोशिश करें। चल आगे, एक दफा 2 दफा 3 दफा, ठीक है। अच्छा दाढ़ी में यार, दाढ़ी में फिलहाल कर, दाढ़ी में छोटी छोटी है वो बताओ, कोई बात नहीं कैसे करनी है? हलाल नहीं करनी, हलाल करना, चलो आसान करना है, ठीक है ठीक है ठीक सर का मसा, ठीक है ठीक है, हाँ सर का मसा कम ऐसे, फिर ऐसे ही बाबा शाबाश, फिर उसके बाद ये जो जिसको हम शाबाश वाली उंगली कहते हैं वो कान के अंदर, ठीक है। और वाइट वाइट अंगूठे से, ठीक हो चलो। दाएं हाथ से नहीं करना, बाएं से करनी है। और कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है? ठीक है ठीक हो गया ठीक हो गया। दूसरा पाँव, चलो ठीक है शाबाश भाई। ये आप कहते हैं गुजारिश है कि हर दफा ना हम पिछला सबक थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहेंगे। हमने ये कोई दर्स की क्लास नहीं हो रही या ऐसा नहीं कि सुन लिया बाजी थोड़े बहुत समझ आ गई। हमने कोशिश करी है सवाल जवाब हर बंदा फर्दन यहाँ पर बताए। जब बताएगा ना तो इंशाल्लाह इससे फायदा ये होगा, वो सारी वो चीज़ भूलेगा, ये फायदा होगा, ठीक है। चले दूसरे का तरीका अगली दफा देखेंगे। अब अल्लाह का तारुफ मैंने वो आगे भी बात किया, दोबारा दोहराता हूं, सबसे बड़ा इल्म जो कुरान है, तो कुरान में सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह का तारुफ है। हम कहते हैं हम अल्लाह को इलाह मान रहे हैं, हम उसको मानते हैं, चंद सदी चीजें हमें पता है, ठीक है। लेकिन जब तक हम अल्लाह का तारुफ, उसकी पहचान, उसकी शान, उसकी अज़मत कैसी है, उसकी सिफात के जरिए, उसके जाती नाम से उसका तारुफ हासिल नहीं करेंगे, हमारा जब तक तारुफ उससे मजबूत जुड़ना नहीं शुरू होगा, तब तक हमारे लिए जो मसाइल हैं उनका हल नहीं है, ठीक है। आज हमने जो अल्लाह का नाम लिया है, सबसे पहले के 2 चीजों में तकसीम है अल्लाह ताला का नाम। एक अल्लाह का जाती नाम है, दूसरा अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल्लाह का जाती नाम क्या और सिफाती क्या है? अल्लाह का जाती नाम सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। इसका एक एजाज आपको बताऊं कि इतने कुफार हमारा मजाक उड़ाते हैं, जैसे हमें गुस्सा भी आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हैं, कोई कहते हैं हम रब को मानते हैं, रब नाम की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, मानने वाली नहीं है, कोई और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये जुर्रत नहीं हुई ये नाम रखने। ये अल्लाह कभी सुना है किसी ने रखा भी चिढ़ के साथ, कोई जिद के साथ, कोई शरारत के साथ किसी ने कहा कि मेरा नाम आज से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह है? किसी काफिर मुशरिक से सुना हो, वो बगाड़ा हो इसे नाम हो? ये इस नाम का इजाज़ है, अल्लाह नाम मखलूक़ात में किसी को जुर्रत नहीं है। इसके अलावा जितने नाम है सफाती का मतलब सिर्फ जो अल्लाह ताला की खूबियां है ना, अर-रहमान है, रहीम है, मालिक कुद्दूस, सारे नाम 99 नाम हो गए, उसके अलावा भी बहुत सारे सफाती नाम है, और वो भी जो हमें पता है, उसके अलावा भी जो हमें नहीं पता वो भी पता नहीं कौन से, इसका हमें इल्म भी नहीं है। तो 2 बुनियादी फर्क है, अल्लाह का ज़ाती नाम एक है अल्लाह, और बाकी जितने सारे उसकी खूबियों वाले सफाती नाम। अब जो है ना इस नाम को बनावट किया है, इसको जरा हमने देखा। आपने कुरान अरबी में पढ़ा, तर्जुमा नाम भी बताओ, तो ये इलाह का जो नाम है, जिसमें हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह। इलाह बार जो ना लफ्ज़ बहुत रिपीट हुआ है। अब ये अल्लाह बन कैसे रहा है? जिस भाई को थोड़ी बहुत पता हो ना, इंग्लिश में ना खास के लिए दी का लफ्ज़ इस्तेमाल या दा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ए के लिए ए का इस्तेमाल होता है। अब दूसरे भाई बेटा बस बात को सादा से कोशिश करना समझाऊं। खास के लिए दी लगता है, आम के लिए ए लगता है। इसी तरह अरबी में अलिफ लाम खास के लिए लगता है और ए के लिए वो और चीजें लगा होता है। जब भी किसी खास चीज का बयान करना तो अलिफ लाम लगता है।
अलिफ लाम हो गया खास और साथ हो गया इला, अल इला। अब इसको इकट्ठा करेंगे, ये बन जाएगा दो लाम। ये मुशद्दद होता है, ये दो हरूफ होते हैं जिनको इकट्ठा लिखने के लिए उसके ऊपर ये मुशद्दद ये हरूफ होते हैं, उनको कहते हैं ये मुशद्दद हरूफ। लाम, दो लामों को ऊपर लिखते तो समझो ये दो लाम है, एक नाम दो नाम। अलिफ लग गया, सारी हालत अल्लाह, अल इला, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो अल्लाह का ज़ाती नाम बनेगा अल्लाह। और दूसरी इसकी अदायगी में जो है मैं बार बार ये थोड़ा जोर दे रहा हूँ, वो ये है कि हम कहते हैं यार अल्लाह 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 अकबर, मुंह को पूरा भर के करना अल्लाह अकबर, इसकी अदायगी ऐसे है। ये पूरा चले फिर जरा थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, बस आपने सादा ज़हन में रखना है कि जब भी हमने कहना अल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह मुंह आपका पूरा भर जाए, ये नाम है। इसमें आपको जब ये आप करेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको कुछ सप्लाई मिलती है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ महसूस होगी। जब कहेंगे अल्लाह अल्लाह, हम नमाज में अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर, ये इसकी बनावट है अल इला अल। इसकी मजीद हो काफ़ी और चीज़ें इंशाल्लाह आगे जो है क्लास में देखेंगे। तो हम दोहरा रहे हैं, हमारी ज़बान अरबी, हरूफ 29, हरकत 3, ज़बर ज़ेर पेश, गलती ज़ेर की, इज़्दिना इलैका, बाज़ल बा बाज़ल बी बापिश बू, गैरिल मग़दूबी रब्बी का। दूसरा वुज़ू का तरीका बताया, इंशाल्लाह अगली दफ़ा गुस्ल का तरीका देखेंगे, फिर इसको बार बार दोहराएंगे, उसके बाद फिर नमाज की तरफ जाएंगे। तीसरा हमने कहा कि अल्लाह का ज़ाती नाम और लौ है, बाकी सारे सिफाती नाम, ये वाहद एक ही नाम है और वाहद है और किसी को जरूरत नहीं ये नाम लगाने की। और दूसरा ये सिफाती नाम है। तीसरी ये चीज है कि इसका जो ये बनावट है वो है और खास के लिए और इला, और इला को इकट्ठा करेंगे तो नाम बन जाएगा अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान के साथ जुड़ने की और इसमें जो सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह का तारुफ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने की और बात हम समान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाह